سبحان اللہ والحمدللہ۔ ایک چھوٹی سی اور مختصر دلیل ابھی سے پیش کر دوں۔ دیکھیے، ہم جب درود شریف پڑھتے ہیں، درود شریف پڑھنے کا حکم ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیا، اور درود شریف کی ایک مستقل آیت کریمہ ہے سورہ احزاب شریف میں 22ویں پارے میں، جس میں اللہ تعالیٰ نے پہلے تو باندھی تمہید کہ جو کام میں تمہیں بتانے لگا ہوں میں بھی کرتا ہوں، میرے ملائکہ بھی کرتے ہیں۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ تمہید یہ باندھی کہ میں بھی یہ کام کرتا ہوں صلاۃ بھیجنے کا، میرے فرشتے بھی کرتے ہیں، لہذا جو ایمان والے وہ بھی کریں۔ ایمان والو، تم میرے محبوب پر صلاۃ بھیجو، اور سلام تو ایسے بھیجو جیسے بھیجنے کا حق ہے۔ تو یہ درود شریف والی آیت ہے جس میں ہمیں اس بات کا پابند کیا گیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود شریف بھیجیں۔ اب سب سے پہلے تو اس کی شرعی حیثیت سمجھ لیں۔ زندگی میں ایک بار پڑھنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ پوری زندگی میں درود شریف ایک دفعہ پڑھنا فرض ہے، اور نماز میں نماز کے اختتام پر دعا سے پہلے اتحیات کے بعد یہ جو درود شریف پڑھا جاتا ہے، امام شافعی فرماتے ہیں یہ بھی فرض ہے۔ امام شافعی کے نزدیک یہ فرض ہے، لیکن امام اعظم کی تحقیق کے مطابق یہ سنت موقدہ ہے۔ سنت موقدہ بھی کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، بہت بڑی چیز ہے کہ اگر کوئی شخص سنت موقدہ کو چھوڑنے کی عادت بنا لے تو قیامت میں اسے سزا یہ ملے گی کہ وہ حضور کی شفاعت سے محروم ہو جائے گا۔ یعنی کتنی بڑی چیز ہے سنت موقدہ۔ اور جب سرکار کا اسم کریم آئے، ایک دفعہ پڑھنا واجب ہے۔ محفل میں بار بار نام آتا ہے سرکار کا، تو ایک دفعہ پڑھنا سن کر واجب ہے، اور بار بار پڑھنا اعلیٰ درجے کا مستحب ہے۔ میں جو بات آپ کو بتانے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ اس بات کا پابند فرمایا کہ ہم حضور پر درود شریف پڑھیں، حضور کی ذات پر سلام بھی پڑھیں۔ اب جب درود شریف ہم پڑھتے ہیں تو درود شریف کے بنیادی سیغوں میں سے ایک سیغہ، یعنی درود شریف کا ایک طریقہ نہیں صرف بلکہ سینکڑوں طریقے ہیں، اور ائمہ اسلام نے اس پر مستقل کتابیں لکھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، حضور کے اصحاب کرام سے، سلف صالحین سے درود شریف کے جو الفاظ ہیں، مختلف الفاظ سینکڑوں کی تعداد میں، سلف صالحین نے ان کو جمع کیا، مستقل کتابیں لکھی۔ علامہ سخاوی نے ایک کتاب لکھی اس پر، القول البدیع فی الصلاۃ علی النبی الشفیع صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس کے علاوہ دیگر ائمہ اسلام نے کتابیں لکھی۔ علامہ نبہانی نے بہت بڑی کتاب لکھی اس پر، سعادت الدارین اس کا نام ہے۔ اس کتاب کا کمال یہ ہے کہ درود شریف کے مسائل، احکام کے مباحث بھی اس میں ہیں، اور جتنے سیغے درود شریف کے مروج ہے دنیا میں انہوں نے ایک جگہ جمع کر دی۔ تو اب ان بنیادی سیغوں میں سے ایک سیغہ وہ ہے جن سیغہ کہتے ہیں الفاظ کو، لفظ کو کہتے ہیں، تو سیغ کہتے ہیں الفاظ کو، سیغہ کی جمع ہے۔ تو بنیادی الفاظ میں سے ایک طریقہ وہ ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، آخر تک۔ سیدنا بھی کہنا چاہیے، کہہ سکتے ہیں۔ محققین نے فرمایا، حضور نے تو فرمائی تواضع، اور ہمیں حکم ہے حضور کے ادب احترام کا، تو لہذا سیدنا اگر ملا دیا جائے تو یہ
खाना साज इजाफा शुमार नहीं होगा, बल्कि ताज़ीम और तकरीम के हुक्म वाली आयात और अहादीस पर अमल होगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, इसमें हम अल्लाह ताला से यूं अर्ज करते हैं, ऐ अल्लाह तू अपने महबूब पर और महबूब की आल पर दुरूद भेज। ये है इसका तर्जुमा। अब देखने के बात ये है, अल्लाह ने हमें फरमाया भेजो, हमने कहा तू भेज। वाले साहब कहे बेटे से कि बेटे पानी पिलाओ, वो कहे खुद पी लो, बेअदबी होगी कि नहीं होगी जी? वाले साहब कहे बेटे से बेटे मुझे पानी पिला दो, वो कहे खुद पी लो, तो अब ये सूए अदबी शुमार होगी कि नहीं, बेएहतरामी शुमार होगी कि नहीं? लेकिन जब अल्लाह ने हमें फरमाया मेरे महबूब पर दूध भेजो, तो हमने कहा तू भेज, तो क्या ये बेअदबी नहीं, ये हुक्म उदूली नहीं? लेकिन हुक्म उदूली ये नहीं है। अगर हुक्म उदूली होती तो इस पर हमें अजर व सवाब न मिलता, इस पर हम सवाब के मुस्तहिक न होते। इन अल्फाज के पढ़ने से हमारे 10 दर्जे बुलंद न होते, 10 खताएं माफ न होती और 10 मर्तबा खुदा की रहमत हासिल न होती। एक दफा जो दुरूद शरीफ पढ़े सरकार पर, कम से कम दर्जा ये है कि 10 गुनाह माफ होते हैं, 10 दर्जे बुलंद होते हैं और 10 रहमतें उस बंदे पर नाज़िल होती हैं। ये कम से कम दर्जा है। तो बालू पर नाफरमानी तो है नहीं, लेकिन जब हम उसी हुक्म को अल्लाह की तरफ लौटा रहे हैं, हमें उसने फरमाया तुम पढ़ो, हमने कहा तू पढ़ जी, दूध भेजो सल्लु अलैहि, हमने कहा सल्ले अला मुहम्मद, तू खुद भेज। तो अब ये नाफरमानी क्यों नहीं, इस नुक्ते को समझना पड़ेगा। नुक्ता ये है कि बाज़ औक़ात जिसको कोई काम बताया जाए, वो कभी कर सकता है, कभी नहीं कर सकता। अगर बेटा सही सालिम हो, उसको ताकत हो, उसको हाथ सही हो, पाँव सही हो, नजर सही हो, पानी भर सकता हो, वाले साहब कहे पानी पिलाओ, वो कहे मैं नहीं पिलाता, आप खुद पी लो, तो ये मुजरम होगा, नाफरमान शुमार होगा। लेकिन अगर वो लूला लंगड़ा हो, अपाहज हो, उठ भी नहीं सकता, चल भी नहीं सकता, उसके हाथ भी काम नहीं करते, फिर वो यूं कहे कि अब्बा जी देख तो रहे हो मेरी हालत कैसी है, मेहरबानी करके आप खुद ही ये काम कर ले, मैं तो नहीं कर सकता, तो ये है आजिज़ी का इजहार, ये नाफरमानी नहीं। तो जब अल्लाह ताला ने हमें फरमाया कि तुम यूं करो कि मेरे महबूब पर दुरूद भेजो, हमने कहा तू खुद भेज, ये नाफरमानी नहीं की, इनकार नहीं किया भेजने से, बल्कि जो अल्लाह ने हुक्म फरमाया हम उस पर अमल पैरा होने से आजिज हैं। कैसे आजिज हैं? ये दुरूद शरीफ का माना समझना पड़ेगा। भाई दुरूद शरीफ का माना क्या है? दुरूद शरीफ के कई माने होते हैं। एक माना है हुजूर की ऐसी तारीफ करो जैसी है, जैसा जैसा कि तारीफ करने का हक बनता है, एक माना ये है। तो अब जब इस माने में अल्लाह ने हमें ये बात फरमाई, तो हमने अपने आप को देखा और सरकार की शान को देखा, हम इंतहाई पस्त और हुजूर इंतहाई बुलंद। तो जो इंतहाई पस्त हो वो इंतहाई बुलंद को पहले तो समझेगा नहीं, जब समझेगा नहीं तो उसके हवाले से तबसरा क्या कर सकता है, बात क्या कर सकता है। तो लिहाजा हमने देखा हम कितने पानी में हैं, हम ये काम नहीं कर सकते, हुजूर की जैसी शान है उसको बुलंद नहीं कर सकते। तो हमने ये कहा या अल्लाह बनाने वाला भी तू है, हुजूर की शान को जानने वाला भी तू है। तो हम तो इंतहाई पस्त हैं, इंतहाई आजिज हैं, हुजूर की शान को जैसे बुलंद करना चाहिए हम तो नहीं कर सकते, लेकिन हम मुनकर नहीं है, तू मेहरबानी फरमा के हुजूर की शान को ऐसे ही बुलंद कर दे जैसे तू चाहता है। हम आमन्ना व सद्दक़ना रखते। तो ये दुरूद शरीफ जो ये इस बात की दलील है कि हुजूर की पूरी शान कोई बंदा बयान नहीं कर सकता, तब ही तो हम अल्लाह से कहते हैं या अल्लाह ये काम तू ही कर ले। एक बार मैंने बस सीधा बातें करने, टाइम ज्यादा नहीं लेना,
कुदरती टाइम लग गया तो अल्लाह के हाथ में है, लेकिन नियत यही है कि मैं थोड़े से टाइम में बहुत सी बातें कर रहा। अगली बात ये समाज फरमाए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तारीफ, तौसीफ, मदह सना, हुजूर के फजाइल को बयान करना और हुजूर की खुदादाद अजमत को जाहिर करना, ये मतलूब शरा है। मतलूब शरा का ये मतलब है अल्लाह ताला का मुतालबा है हमसे कि ये काम करो। नमाज का हमसे मुतालबा है कि पढ़ो। साहिब इस्तिताअत, साहिब हैसियत मुसलमान पर ज़कात फर्ज है तो ज़कात का मुतालबा है उससे कि ज़कात अदा कर। इसी तरह हज करने का भी मुतालबा है, रमजान शरीफ के रोजे रखने का भी मुतालबा है। तो ये सब मतलूब शरा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ, तौसीफ करना ये भी मतलूब शरा है। मैं इसके हवाले से दो जुमले अर्ज करना चाहता हूँ। मुझे पहली बात ये बताएं कि भाई अल्लाह ताला ने हुजूर की शानें, हुजूर की अज़मतें, हुजूर के फज़ाइल कमालात कुरान शरीफ में बयान फरमाए कि नहीं फरमाए? लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। ये हुजूर की शान है। अल्लाह ने बयान फरमाया नहीं फरमाया? वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। बयान फरमाई कि नहीं फरमाई? इसी तरह से इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा। ये हुजूर के औसाफ का हवाला देकर अल्लाह कुरान में ये बात बयान कर रहा है। तो हुजूर की शान बयान हुई कि नहीं? किसने बयान किया? अल्लाह ने। अब जब नबी की सुन्नत पर चलना जरूरी है तो अल्लाह की सुन्नत पर चलना जरूरी हुआ कि न हुआ? जी, नबी की सुन्नत पर चलना इसलिए जरूरी है कि रब ने फरमाया है, हमें पाबंद किया। तो अल्लाह ताला के तरीके पर, सुन्नत माने तरीका, अल्लाह ताला के तरीके पर चलना बतरीके औला जरूरी हुआ। तो कुरान में अल्लाह ताला का हुजूर की अजमतों को बयान करना इस बात की दलील है जो बंदा है वो हुजूर की शान बयान किए बगैर नहीं रह सकता। जो बंदा है जी, उसकी बंदगी का यह हिस्सा है कि वो हुजूर की शान को बयान करे। लिहाजा मतलूब शरा है। मतलूब शरा की एक दलील मैंने ये अर्ज की। दूसरी बात यह है कि फिक़ही इस्तिलाह से हटकर तकाज़ाए ईमान और तकाज़ाए इस्लाम का जो फलसफा है उसके मुताबिक हुजूर की शान बयान करना नमाज पढ़ने से भी ज्यादा जरूरी है, रोजा रखने से भी ज्यादा जरूरी है। मैं ये नहीं कह रहा कि नमाज पढ़ना जरूरी नहीं, नमाज जरूरी है, लेकिन हुजूर की शान बयान करना उससे ज्यादा जरूरी है, रोजे से ज्यादा जरूरी है, हज से ज्यादा जरूरी है, ज़कात के फर्ज अदा करने से ज्यादा जरूरी है। चाहे तो मैं एक दलील पेश करना चाहता हूँ। इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है। आपने ये मशहूर हदीस सुनी होगी, बुनियल इस्लाम अला खम्स, मुत्तफ़क़ुन अलैहि हदीस। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर वगैरह हुमा से मरवी है, रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अजमईन। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है। आगे जो उसकी आपने तफसील बयान फरमाई, अल्फाज मुबारक यूं हैं, शहादत अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व इक़ामिस सलाह व ईताइज़ ज़कात व सौम रमज़ान व हिज्जिल बैत मन इस्तताअ इलैहि सबीला। इसका खुलासा ये बनता है कि जिन चीजों पर, जिन उमूर पर इस्लाम की बुनियाद है, जिन 5 चीजों पर, वो कौन कौन सी हैं? कलिमा तय्यबा बोलते जाइए, कलिमा तय्यबा, नमाज, रोजा, हज, ज़कात। कितने हो गए? 5 हो गए। अब मैं चुप तो आप बोले, जल्दी बोले। जब कोई चीज पूछी जाए और
दीन ईमान की बात हो तो बोलना जरूरी होता है जी। तो अब बोलिए इस्लाम की बुनियाद जिन चीजों पर है वो 5 कौन कौन सी हैं? जल्दी जल्दी बोलो। कलमा तय्यबा, नमाज, रोजा, हज, ज़कात। फिर बोलो, मैं चुप होता हूँ, ये तो मैंने फेरा दिलवाया है। जरा जल्दी बोलो। आप इस मौजू की तमाम हदीसें उठाकर दिखाएं, आप किसी को दिखाएं, खुद पढ़ें। तो इस मजमून की तमाम अहादीस में, ये इस हदीस के तमाम तुरुक में कलमा तय्यबा बाकी 4 अरकान से पहले है। यूं नहीं है नमाज, रोजा, हज, ज़कात और कलमा तय्यबा, बल्कि कलमा तय्यबा पहले है और बाकी 4 अरकान बाद में है। क्यों बाद में है? इसकी वजह यह है कि जो जिस शख्स के पास कलमा ना हो, नमाजें पढ़ता रहे, नमाज नहीं, रोजे रखे, रोजे नहीं, हज करे, हज नहीं, ज़कात दे, ज़कात नहीं, कोई नेकी नहीं बनती जब तक बंदे के पास कलमा ना हो। तो नमाज की बुनियाद कलमा, रोजे की बुनियाद, हज की बुनियाद, बस 1-2 बोले नुमाइंदगी होती रहेगी, कोई बात नहीं, बाकी सो रहे हैं, कोई बात नहीं जी। हज की बुनियाद कलमा, ज़कात की बुनियाद कलमा, ठीक है जी। हिंदू मैं चलो खोल कर पेश कर दूं, हिंदू कलमा को नहीं मानता। अगर वो नमाजें पढ़े तो नमाज हो जाएगी उसकी, रोजा रखे तो रोजा कहलाएगा, फाका बनेगा, फाका कहलाएगा, भूख मराए सारा दिन जी। हज को चल पड़े, हज हो जाएगा। ज़कात के नाम से कोई माल खर्च करे, अदा हो जाएगी। वजह क्या? उसके पास कलमा नहीं है। तो मालूम हुआ नमाज, रोजा, हज, ज़कात इनकी बुनियाद कलमा है। अब मुझे सिर्फ एक बात बता दें, अगर नींद हो तो उससे 1 मिनट के लिए माजरत करें। भी हमने एक बात सुनी और उसका जवाब देना है। कर ली माजरत? मेरी तरफ मुतवज्जो हो गए जी। नमाज, रोजा, हज, ज़कात की बुनियाद कलमा पर। मैं एक बात पूछूं, आप बताएं तो मौजू मुकम्मल हो जाएगा। कलमा की बुनियाद किस पर है? बोलो, कलमा की बुनियाद कौन है? सरकार इसकी बुनियाद है। आपसे कोई पूछे कलमा किसका पढ़ते हो, किसका नाम लोगे? क्योंकि कलमा की बुनियाद सरकार है। तो जब कलमा की बुनियाद सरकार हुए जी, तो नमाज की बुनियाद कलमा, रोजे की बुनियाद कलमा, हज, ज़कात की बुनियाद कलमा। तो सब की बुनियादी चीज, मरकजी हैसियत किसकी हुई? सरकार की हुई। तो जब नमाज पढ़ना फर्ज है तो जो बुनियाद है वो ज्यादा फर्ज है। रोजा रखना फर्ज है तो जो रोजे की भी बुनियाद है वो ज्यादा फर्ज है। हज, ज़कात जब फर्ज है तो जो इनकी भी बुनियाद हो वो ज्यादा फर्ज है। लिहाजा हुजूर की शान को बयान करना इतना फर्ज है कि नमाज भी इतना फर्ज नहीं, रोजा भी इतना फर्ज नहीं, हज और ज़कात भी इतना फर्ज नहीं। लिहाजा हम अपना फर्ज पूरा कर रहे हैं। बोलो, फर्ज पूरा करना बंदे की ड्यूटी होता है या जुर्म शुमार होता है जी? ये चीज हमारे फराइज में शामिल है, यानी हमने ये चीज करनी है। जुर्म से बचना जरूरी और फर्ज का करना जरूरी। तो अब जो फर्ज को जुर्म कहे जी, तो मुजरिम वो है या फर्ज को अदा करने वाला मुजरिम है? एक जुमले में सारी बहस आ गई। यानी नबी के जिक्र को, हुजूर की तारीफ की महफिल को बिदअत कह देना। बिदअत होता है जुर्म, ये बताते खुद जुर्म हुआ, क्योंकि हुजूर का जिक्र, हुजूर की तारीफ और तौसीफ ये फर्ज है जी, दूसरे फराइज से भी बढ़कर फर्ज है। तो लिहाजा अल्हम्दुलिल्लाह हम महफिल मिलाद सजाकर अपना फर्ज पूरा करते हैं। जो फर्ज से रोके मुजरिम वो होता है, जो उस पर अमल करने वाला हो वो तो लायक के सताइश होता है। आपने जब ये बात समझ ली, अब एक बात समझ ले, और ये बात समझ आ गई कि भाई हुजूर की तारीफ और तौसीफ मतलूब शरअ है जी। हमसे मुतालबा है कि ये करो, क्या करो, ये करो। अब कुछ हजरात ये सोच रहे हैं कि
کلمہ طیبہ کے دو حصے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دو جملے دو. تو کلمہ جب بنیاد ہے 4 ارکان کی، بقیہ 4 ارکان کی، اب ان 2 اجزاء میں سے کون سا جز کس کی بنیاد ہے؟ لا الہ الا اللہ بنیاد ہے محمد رسول اللہ کی، یا محمد رسول اللہ بنیاد ہے لا الہ الا اللہ کی؟ بات آ گئی تو میں ذرا اس کو بھی آپ کی اجازت سے اس کو واضح کر دوں. مقصود کے اعتبار سے توجہ سے سماعت فرمائیے، مقصود کے اعتبار سے لا الہ الا اللہ بنیاد ہے. مقصود کا یہ مطلب ہے جس مقصد کے لیے ہم پیدا کیے گئے وہ ہے اللہ تعالیٰ کی جستجو، اللہ تعالیٰ کو ڈھونڈنا، اس کو تلاش کرنا، اس کی پہچان حاصل کرنا، پہچان کر وہ کرنا جو ہم نے کرنا ہے، جس سے وہ خوش ہو جائے، اور اس سے بچنا جس سے وہ ناراض ہو جائے. یہ ہے مقصد تخلیق. اب میں کہتا ہوں مقصود کے اعتبار سے لا الہ الا اللہ بنیاد ہے، لیکن وہ مقصد حاصل نہیں ہو سکتا محمد الرسول اللہ کے بغیر. لہذا حصول مقصد کے اعتبار سے محمد الرسول اللہ بنیاد ہے. تو نتیجہ یہ نکلا لا الہ الا اللہ کو سمجھنے کی بنیاد بھی حضور، اللہ کی پہچان نہیں مل سکتی حضور کے بغیر، اللہ کو ہم نہیں مل سکتے حضور کے بغیر، ڈھونڈنا بیکار ہوگا حضور کے بغیر. جی اس کی عبادت کرنا اس کا موقع محل نہیں رہے گا حضور کے بغیر. کون سے کام سے وہ خوش ہوتا ہے یہ بھی حضور بتائیں گے، کس کام سے وہ ناراض ہوتا ہے یہ بھی حضور بتائیں گے. تو مقصود کو حاصل کرنے کے اعتبار سے حضور بنیاد ہے صلی اللہ تعالی وسلم. تو اب نتیجہ یہ نکلا جی کہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد بھی حضور ہے. میں اس کو ذرا تھوڑا سا مزید آسان کر دیتا ہوں. ایک بندہ مسلمان ہونا چاہے اور وہ صرف پڑھے لا الہ الا اللہ، مسلمان ہو جائے گا؟ جی یہ جو کوئی چپ ہے یہ کوئی اور رائے دینا چاہتے ہیں یا اگلوں سے متفق ہے؟ جی کچھ بولتے ہیں اور کچھ اس کی تائید کرتے ہیں. موجد ہونے کی حیثیت سے خاموش ہے، نمائندگی ہو گئی ہماری. ایک کافر کو مسلمان کرو اور اسے پڑھا دو صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہ پڑھاؤ، مسلمان ہو جائے گا؟ نہیں ہو جائے گا. کافر ساری زندگی لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے جی تو مسلمان شمار نہیں ہوگا جب تک محمد رسول اللہ کی تصدیق اور اس کا اقرار نہ کرے. تو لا الہ الا اللہ سے مسلمان کیوں نہیں ہوا؟ معلوم ہے لا الہ الا اللہ کا معنی سمجھ نہیں آئے گا حضور کے بغیر، اس کا مفہوم سمجھ نہیں آئے گا حضور کے بغیر، اللہ کی معرفت اور پہچان نصیب نہیں ہوگی حضور کے بغیر. لہذا مقصود کو حاصل کرنے کے اعتبار سے سرکار بنیاد ہے. تو پورے دین کی بنیاد حضور ہے. جی نماز پڑھنا ضروری، روزہ رکھنا ضروری. جی جو نہیں بول رہے شاید ان کی ہے کوئی مجبوری، اور بھی نہ ہو تو شاید نیند کا کورس پورا کرنا شروع ہوا ہے، اب سننے کا کورس پورا کرنا ہے. لہذا بیدار ہو کر بیٹھے. نماز ضروری، روزہ ضروری، حج ضروری، زکوٰۃ لا الہ الا اللہ پڑھنا ضروری، اور محمد الرسول اللہ سب سے زیادہ ضروری، کیونکہ محمد الرسول اللہ کے بغیر جی نہ دین دین ہے نہ توحید توحید ہے. میں اس کو ذرا تھوڑا سا ایک اور جملہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے بھائی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہے 2 مسئلے. ایک مسئلہ ہوا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، یہ مسئلہ ہے شرعی مسئلہ. دوسرا مسئلہ ہے دوسرے فکر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے رسول ہیں، تھے نہیں.
क्योंकि जो थे उसको कहते हैं जो गुजर गया और जिसका ताल्लुक वास्ता हो, हाँ उसको कहते हैं जिसका कानून चल रहा हो, हाँ उसको कहते हैं जिसका इख्तियार चल रहा हो, जो जिंदा जो हयात हो। तो लिहाजा हयात और नबी की दलील पूछने वाले या तो कलमा ना पढ़े, कलमा पढ़ते तो दलील ना पूछे, क्योंकि कलमा शरीफ जब मौजूद है तो हुजूर हैं, जब हैं तो हैं। अब जरा तवज्जो फरमाइए, ये दो मसले हैं। कायदा ये है कि जब एक बात पूरी हो जाए, एक जुमला, एक फिक्रा, एक मसला, तो दूसरा मसला जब बयान करे तो दरमियान में कोई हर्फ होना चाहिए जो दोनों को मिलाए, जो दोनों को मिलाए। आपका क्या नाम है? अली असगर साहब। बुजुर्गों का क्या नाम है? शाहजहां। अच्छा, मुझसे पूछे कि भाई आपके साथ कौन बैठे हैं, मैं कहूँ अली असगर साहब बैठे हैं। आगे यूं नहीं कहूँगा अली असगर साहब बैठे हैं, शाहजहां साहब बैठे हैं, यूं नहीं कहूँगा, बल्कि कहूँगा अली असगर साहब बैठे और शाहजहां साहब बैठे हैं। दरमियान में आएगा और कल हर्फ जो ये मिलाता है दोनों जुमलों को। अरबी में इसको कहते हैं वाव। जी क्या कहते हैं? वाऊ। कुरान शरीफ में देखिए, हुदल लिल मुत्तकीन, कुरान मजीद का फायदा अहले ईमान को है, अहले तकवा को है। अहले तकवा कौन है? अल्लाह ने आगे सिफात बयान फरमाई, अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, जो गैब पर ईमान रखते हो। ये एक बात हो गई। आगे फरमाता था युकीमून अस्सलाता, सीधा नहीं फरमाया बल्कि फरमाया व युकीमून अस्सलाता। वाह वाह, आप नहीं बोलेंगे तो मैं कहूँगा वाह। वाह आपकी खामोशी। जी, अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, एक बात हो गई। अगली बयान करने से पहले फरमाया वाह युकीमून अस्सलाता, वो मुकम्मल हुई तो आगे फरमाया व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। तो मालूम है कि जब कुछ जुमले आ जाए एक लाइन में तो उनको मिलाने के लिए दरमियान में हर्फ चाहिए। अरबी ग्रामर में उसको कहते हैं हर्फ अत्फ। जी, अगर उर्दू की ग्रामर भी पढ़िए तो ग्रामर की जुबान एक ही होती है, सिर्फ अल्फाज का फर्क, बोली का फर्क होता है। जी, कवायद एक ही होते हैं, सिर्फ अल्फाज का फर्क होता है। वही फेल, वही इस्म, वही हर्फ, सिर्फ बोली बदल जाती है। उर्दू में कहते हैं और अरबी में कहते हैं वाह। वाह करानी है या वाह बोलना है? अब बोले वाह। और इंग्लिश में कहते हैं एंड। अब्दुल रहमान एंड सन्स, अबू जहल एंड कंपनी, एक मिसाल है। तो एंड का माना और, वाह का माना भी। ये हर्फ अत्फ है, ये मिलाता है जुमलों को। मेरा सवाल ये है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जब दो फिक्रें, दो मसले हैं, इनके दरमियान वाह क्यों नहीं है? ला इलाहा इल्लल्लाह व मुहम्मदुर रसूलुल्लाह होना चाहिए था भाई। क्या होना चाहिए था? वाह व मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, और होता दरमियान में। ये वाह क्यों नहीं है? आइए जरा ये ईमान अफरोज बात समझने की कोशिश फरमाएं। ला इलाहा इल्लल्लाह दावा है और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह उसकी दलील है। ला इलाहा इल्लल्लाह दावा है और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह उसकी दलील है। अगर और दरमियान में आ जाए तो दावा और हो जाएगा, दलील और हो जाएगी। तो लिहाजा और से बचाने के लिए वाव रखी भी दी गई। अच्छा, ये जो नींद कर रहा है मुझे खतरा पैदा हो गया। सुबह ये ना कहे कि भाई रात तकरीर सुन्नती वाव मिलाना है कलमों में। नहीं मिलाना, कान खोल कर सुन लो जी। वाव दरमियान में नहीं मिलानी। ला इलाहा इल्लल्लाह व मुहम्मद रसूलुल्लाह नहीं पढ़ना, वाव के बगैर पढ़ना है। मैं कहता हूँ होनी चाहिए थी। तो समझने की बात यह कि है क्यों नहीं, इसका जवाब यह है कि ला इलाहा इल्लल्लाह दावा है और मुहम्मद रसूलुल्लाह उसकी दलील है। दावा क्या है?
तफसील क्या बनती है। देखिए भाई, बिल्कुल सीधी सी बात है, जो कलमा पढ़ता है वो दावा करता है अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, तो उसका दावा हो गया भी अल्लाह है, क्या अल्लाह है और है भी एक। आगे शैतान हर किसी के पास है और हर बंदा मासूम और महफूज हस्तियों के अलावा उसके दर्जे में है। इन्ना शैतान यजरी मिनल इंसान मजरा, हुजूर ने फरमाया शैतान बंदे के साथ ऐसे चलता है जैसे उसके रगों में खून चलता है। मतलब यह कि हर वक्त चौकन्ने रहो कहीं वो तुम्हारी राह न मार दे। तो शैतान हमला करते हुए ये कहता है दावा जो तुम कर रहे हो अल्लाह है और है भी एक, कब देखा है तुमने, तुम्हारे पास क्या दलील है इसकी? दलील है तो पेश करो, नहीं है तो छोड़ो इसको। तो इस बेईमान का इलाज है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जी। तो अल्लाह ताला ने हर मुसलमान के हाथ में दलील दे दी। जब शैतान हमला करे पूछे अल्लाह है, तुम कह रहे हो दावा कर रहे हो और है भी एक, तो कब देखा तुमने, इसकी दलील पेश करो। तो फौरी मेरे महबूब का हवाला दो जी और उसको कह दो हमने नहीं देखा, देखने वाला देख कर आ जाए। हमारे लिए हुजूर सबसे बड़ी दलील है। अल्लाह को अल्लाह इसलिए मानते हैं कि सरकार ने कहा, सरकार ने फरमाया, यानी अल्लाह अल्लाह करने वाले बहुत हैं। हम उन बहुतों के पीछे चलकर अल्लाह को अल्लाह नहीं मानते, हम मदीने वाले के पीछे चलकर अल्लाह को अल्लाह मानते। तो ला इलाहा इल्लल्लाह दावा है मोहम्मद रसूलुल्लाह, उसकी दलील है। दलील और दावे के दरमियान फर्क नहीं होता दरगाह में, इसलिए वाव नहीं है, होगी भी नहीं, पढ़ने भी नहीं, मिलाने भी नहीं, तकरीर को गलत समझकर सुबह ऐलान भी नहीं करना ये वाव पढ़नी है आज से नहीं पढ़नी। वाव कलमा यही है, यही फर्श पर है, यही अर्श पर है। हजरत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैंने इसी कलमा को देखा अर्श के हर पाए पर लिखा हुआ है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बात लंबी हो जाएगी, लेकिन लंबी होने से जितनी साफ होगी इंशाल्लाह उतना ईमान साफ होगा। जो बात समझने की है वो ये है कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इसके दरमियान वाव इसलिए नहीं कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह दलील है किसकी दावा की, और दावा क्या ला इलाहा इल्लल्लाह। इससे ये साबित हुआ कि कलमा इतना ही है। कलमा एक बहुत बड़ा झगड़ा जो है वो नज़ा का खात्मा हम करना चाहते हैं, लोगों को समझाना चाहते हैं, दावत फिक्र देना चाहते हैं। झगड़े दो पड़े हुए जी, कुछ लोग ये कह रहे हैं ला इलाहा इल्लल्लाह पर कलमा मुकम्मल है, ला इलाहा इल्लल्लाह पर कलमा मुकम्मल है, मोहम्मद रसूलुल्लाह उसका हिस्सा नहीं। कुछ लोग यूं कह रहे हैं जी, इसलिए आप इनकी मस्जिद को देखें ना तो ला इलाहा इल्लल्लाह एक तरफ लिखा होगा मोहम्मद रसूलुल्लाह, दूसरी तरफ आप कहते होंगे जगह नहीं थी, जगह थी इधर, जगह नहीं थी, इसलिए वो अलग करके लिखते हैं। आगे समझ में? और कुछ लोग कहते हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह से आगे भी कलमा है, समझ गए? तो मैं 100 की एक बात करता हूँ, मुख्तसरन अर्ज करता हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह दावा है, मोहम्मद रसूलुल्लाह उसकी दलील है। तो जो लोग ला इलाहा इल्लल्लाह पे रोक गए, आगे कहते हैं कलमा नहीं है, बस कलमा यहीं पे मुकम्मल हो गया, इसका मतलब ये हुआ दावा तो है, दलील इनके पास नहीं है जी। दावा हो दलील ना हो जी, दावा खारिज हो जाता है। क्या हो जाता है? बंदा फारिग हो जाता है जी, सुरखरू होने की वजह बस औकात मुजरिम हो जाता है, अपने मुद्दाले को जेल में कराने के बजाय खुद जेल में चले जाता है जी। तो जो कहते ला इलाहा इल्लल्लाह पर कलमा मुकम्मल है, उनके पास दावा तो है, दलील नहीं है, यानी दावा तो करते हैं, अगर दलील नहीं देते वो दलील को मानते नहीं। और जो कहते हैं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह से आगे भी कलमा है, उनको इस दलील पर एतमाद नहीं है। हिम्मत करो जरा समझने की। और जिसको
मोहम्मद रसूल पर एतमाद नहीं, हमें उन पर एतबार नहीं। तो लिहाजा कलमा यही मुकम्मल है, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने जब ये बात समझ ली, मैं असल में ये कहने लगा था कि पूरे अरकान इस्लाम की बुनियाद कलमा पर है और कलमा की बुनियाद हुजूर पर है। तो ज्यादा जरूरी कौन हुआ? यूं समझो कि अगर हुजूर तशरीफ ना लाते, नमाज मिलती, रोजा मिलता, हज मिलता, ज़कात का फरीजा मिलता, अल्लाह ताला की तौहीद समझ आती, तो बुनियाद कौन हुए? हुजूर बुनियाद हुए। जब नमाज रोजा फर्ज है तो हुजूर उनसे ज्यादा फर्ज है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये मैंने अर्ज किया कि हुजूर की तारीफ करना मतलूब है शरा है, मतलूब है शरा है। मतलूब है शरा को करनी पड़ेगी तुम्हें ये चीज, ये काम तुम्हें करना पड़ेगा। बंदे हो तो करना पड़ेगा, उम्मती हो तो करना पड़ेगा। या कहो बंदे नहीं है या कहो उम्मती नहीं है।